Okay, good afternoon, everyone. I hope I'm audible to you. Okay, just a minute. And what about my screen? Is it visible to everyone? I've shared the PPT of chapter 10. Yesterday, I shared with you the PPT of chapter number 9 in the WhatsApp group. I hope you all went through the PPTs that I've shared in the WhatsApp group of the past 9 chapters. So we are already done with the 9 chapters, almost half of the syllabus. There are 18 chapters in all. I have shared the syllabus also with you in the WhatsApp group. Let me share it with you. Just a second. Give me a minute. Uh, I'm sharing the screen again. I'm sharing the syllabus file with you. I hope it's visible to you now. Okay, so we are done with unit 1 and unit 2 and we have started unit 3. Unit 1 may we discussed about management, organization, consumer, employees, entrepreneur, intrapreneur, various forms of ownership, business format. We talked about MSME. And in unit 2, we talked about the environmental details, micro environment, macro environment. Then we talked about business ethics, social responsibility, social entrepreneurship. And yesterday we started with unit 3, that is planning and organizing. So we are already done with planning. I'll be starting with decision making today, and then the organizing will be left, and we'll be done with unit 3 as well. Then unit 4 and unit 5 are there. Uh, Many of the students were asking me in my personal window about the BOM syllabus. So this is your BOM syllabus. And let me inform you guys very clearly कि many of you have been calling me to know that SOL has given this notification to upload something, or SO um, has asked you to furnish certain documents. It's my humble request to everyone that being a faculty, I really don't know what are the requirements, documental requirements of SOL. So I request everybody to please directly contact the admin department of SOL. Okay? And in case you have any query related to any of the topic that I have taught, or any of the concern regarding BOM, I'm always there to help you out. Many of the students have been asking about accounts या economics की book बता दीजिए, accounts की book बता दीजिए. वो book आपको आपकी respective teachers बताएंगे. I am your business organization and management teacher, so I'll be looking after all the details related to BOM. I hope I'm clear to you all now. Okay. So now let's start with another chapter. Yesterday we did planning, and I hope it is understood to you all. Now the second chapter under unit 3 is your planning. अब सॉरी डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में आपका क्या होता है कि हम इस चैप्टर में वील टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग, वील टॉक अबाउट नेचर, रोल, द एंटायर प्रोसेस, वेरियस टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. इस चैप्टर में आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका है टेक्निक्स एंड स्टाइल्स. These two are very very important because आपसे जब एग्जाम में पूछते हैं तो they are not going to ask you कि what do you mean by the term decision making. Rather, they will ask you about techniques and styles of decision making. So you do not have to jump to the question directly कि there are these many techniques, traditional techniques, modern techniques, queuing, linear programming, etc. etc. No. फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे इस चैप्टर में कुछ भी पूछते हैं तो सबसे पहले बताइए कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है. आपको डिसीजन ओके
You always have to answer in points and then explain in paragraph. I hope I am clear. मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि जब भी आप आंसर, जैसे सपोज आपसे क्वेश्चन में पूछा कि टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, तो यू आर नॉट गोइंग टू टेल इट डायरेक्टली कि टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग ये सब होता है। पहले बताइए डिसीजन मेकिंग क्या होता है, उसके बाद बताइए इसके फीचर्स क्या हैं, फिर टेक्निक्स का पूरा डायग्राम बनाइए जो मैं अभी आपको स्लाइड में दिखाऊंगी। उसके बाद सबको पॉइंट वाइज दो दो तीन तीन लाइन में पैराग्राफ में एक्सप्लेन करिए एंड इन द एंड राइट अ कंक्लूडिंग रिमार्क्स। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल एंड हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू अटेम्प्ट योर आंसर, हाउ टू प्रेजेंट इट. Okay. Any further query regarding how to answer your questions? So let's start with another chapter, that is decision making. Okay. सबसे पहले हम decision making से समझते क्या है. क्लास 1 मिनट, मेरा ये हैंग हो गया है कुछ. What happened? आप 1 मिनट दीजिए मुझे ना. ये is my slide visible? Is my slide visible to everybody? I'm sharing it again, just a minute. I'm sharing it again. I wasn't able to scroll it. आप 1 मिनट दीजिए मुझे. I hope it's visible to you all now. So we were talking about decision making. The first part is what do you mean by decision making? Decision आप कब करते हो? जब आपके पास choices होती हैं. अगर आपके पास alternatives ही नहीं होंगे, choice ही नहीं होगी, तो फिर decision किस बात की? फिर तो जो है सो है, आपको वही execute करना है. So decision making is basically selection based on some criteria that differ two alternatives. मतलब आपके पास चॉइसेस हैं 2 3 4, आप उसमें से एक क्राइटेरिया के बेसिस पे जब आप सिलेक्शन करते हो उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं. आई मीन to cut off the rest of the topics, to cut off rest of the alternatives and to arrive at one final decision that is going to depict your future course of action. So basically it's a final resolution of a conflict of needs, means, goals that आप डिसाइड करते हो कि इन फ्यूचर अगर हमें कुछ अनसर्टेनिटीज आती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू आंसर देम. दिस वुड बी आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. आई होप आई एम क्लियर. Yes, I hope I am clear. Is my slide visible? Some of you have messaged that it is not visible. Please tell me, is the slide visible or not? Okay, now moving on to the next part, that is nature of decision making. जब हम decision making की बात करते हैं तो what are the features of decision making? First of all, it's an intellectual process. ऐसा तो नहीं है ना कि हमने ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे select कर, मतलब ऐसे we did it and we made the selection. It's an intellectual process. It's a brainstorming activity undertaken by the top level management in order to finalize the decision, in order to finalize the future course of action. और उस future course of action को define करने के लिए हमारे पास जितने alternatives available होते हैं we select them.
इट्स अ सिलेक्शन प्रोसेस, इट इज गोल ओरिएंटेड. ऑब्वियसली हम कोई भी ऑल्टरनेटिव कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको किस बेसिस पे कर रहे हैं? वी आर डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स कि मेरा मिशन क्या है, मेरे शॉर्ट टर्म मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, अकॉर्डिंगली ही तो मैं ऑल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करूंगी. सो इट इज रिलेटेड टू सिचुएशन, प्लेस एंड टाइम. देन टॉकिंग अबाउट द फोकल पॉइंट, आपका फोकल पॉइंट क्या है जब भी आप डिसीजन लेते हो कि आपका प्रायोरिटी क्या है? आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो यू उसमें यू ऑलवेज टॉक अबाउट, यू ऑलवेज टेक द डिसीजन इन टर्म्स ऑफ योर नीड्स, in terms of your wants, demands, in terms of your priority, कि मुझे करंट सिचुएशन को देखते हुए which would be the best option for me. Okay, then we have this continuous process. Continuous process क्यों है? क्योंकि environment जो है वो constantly change हो रहा है, और अगर मैं इस चेंजिंग एनवायरनमेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करके अपॉर्चुनिटीज को टैप नहीं करूंगी तो ऑल इन वेन, मेरा डिसीजन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है. मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग ही फॉलो करूंगी और ऑनलाइन अब मैं कंप्लीटली बंद कर दूंगी. ठीक है, आई हैव मेड दिस डिसीजन. ओके, लेकिन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब्सीक्वेंट वेव्स आ गई तो विल आई बी कंटिन्यूइंग फॉर दैट? ये तो फिर एडमेंसी हो गई ना. अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंटरवेंशन है तो अकॉर्डिंगली द बिजनेस अफेयर्स हैव टू बी मोल्ड एज पर द changing policies, changing environment and changing technology. And this is why this decision making is a continuous process. और ये one shot process नहीं है कि साल के शुरू में आपने decision ले लिया और that would be followed till the end of the financial year. Okay, next is your enhanced by participation. एक और एक 11 हम बोलते हैं ना, तो इसमें क्या कहने का मतलब है कि जितना पार्टिसिपेशन होगा, कहते तो ये भी है कि टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ. ओके, लेकिन जितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हमारे साथ डिसीजन मेकिंग में जुड़ेंगे उतना ही हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहता है. एक एनहांस्ड डिसीजन मेकिंग हो पाती है, एक बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाती है जिसमें आप एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए, अपने लिए, इन सब के लिए उनका बेनिफिट सोचते हो. एंड इट इज नॉट सेम एज प्लानिंग. इट इज नॉट सेम एज प्लानिंग. प्लानिंग में हम चीजों को प्लान कर रहे हैं कि अच्छा मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा. मुझे कितना रॉ मटेरियल खरीदना है? मुझे सपोज 10,000 kg रॉ मटेरियल खरीदना है. लेकिन डिसीजन मेकिंग ये फाइनलाइज करता है कि रॉ मटेरियल किससे खरीदना है. गॉट इट? आपके पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, तो रॉ मटेरियल किससे खरीदना है कम्स अंडर द हेड डिसीजन मेकिंग, और रॉ मटेरियल खरीदना है कम्स अंडर द हेड प्लानिंग. आई होप आई एम क्लियर टू यू about the difference between planning and decision making. Then commitment of resources and communication of results. आपने कोई डिसीजन ले लिया तो बस, मतलब you have to communicate it to the middle level management, to the lower level management, because whatever you people, whatever the top level management decides, कोई भी स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रही है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस को वो फ्रेम कर रही है, अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट किस पे हो रहा है? वो इम्प्लीमेंट हो रहा है लोअर लेवल मैनेजमेंट पे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे. सो बिफोर, once we are done with the decision making part, we have to convey it to the next level of hierarchy. Okay, coming on to the next part, it says role of decision making. What do you think, what is the role of decision making? क्या role होता है decision making का किसी भी firm में? Drop your answers in the chat box. बताइए डिसीजन मेकिंग क्यों जरूरी है, क्या रोल है इसका मैनेजरियल फंक्शंस में? यस, हरी अप. Okay, let me explain you.
देखो, जो डिसीजन मेकिंग होता है सबसे पहले वो परवेजिव फंक्शन है, वो हर जगह पे है। ऐसा नहीं है कि मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ तो वहीं पर मुझे डिसीजन लेने होते हैं। जब मैं जॉब कर रही होती हूँ वहां पे भी डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है, हमारे घर के हाउस होल्ड कोर्स में डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है। आप घर से बाहर निकले, आपको अपनी जॉब पे जाना है, आपको अपने कॉलेज जाना है या आपको किसी भी काम के लिए जाना है, तो आप डिसीजन लेते हो कि कैसे जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, पर्सनल ट्रांसपोर्ट से जाना है, कितने बजे निकलना है, वहां कितने बजे पहुंचना है। ये सब क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। Okay, so it motivates employees. Why? How? Because once it is clear to employees that what is to be done, when it is to be done, and amongst so many alternatives, which one is they have to follow. तो यहाँ पर लेस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेस केओस होता है। दिस इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट विच आल्सो फैसिलिटेट इनोवेशन। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि मैंने कह दिया आप ऐसे करेंगे तो बिकॉज आई एम द सीईओ वी विल मूव इट लाइक दैट ओनली। डिसीजन मेकिंग ऑलवेज एनकरेजेस इनोवेशन। आप इनोवेशन को एनकरेज करते हो, आप क्रिएटिविटी को फॉस्टर करते हो, उससे एक बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाता है। इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, करेक्ट। वाई? बिकॉज ये किसका काम है? ये मैनेजमेंट का काम है। अब जब मैनेजमेंट डिसीजन लेकर उसको फर्दर इवैल्यूएट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को भी जज कर रही है कि क्या उनकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी was correct or it needs updation, it needs modification, या कहाँ पे वो गलत है। वो उनको इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इट लीड्स टू क्विक डिसीजंस एंड इट लीड्स टू सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। इतना टाइम नहीं है कि भाई हम 1 महीना तो सिर्फ डिसीजन मेकिंग में ही स्पेंड कर रहे हैं, है ना। हमारे पास 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर है, तो डिसीजन मेकिंग हैज टू बी वेरी वेरी क्विक। इट हैज टू बी मतलब क्विक का मतलब ये नहीं है कि हेस्ट में आप कोई भी डिसीजन ले लेंगे। क्विक का मतलब है कि यू कैन नॉट स्पेंड days, weeks or months in just merely selecting the best alternatives, otherwise you will be lagged behind in the race. Okay, and of course decision making is all about selection of the best alternatives that are available in the market, that are available to the entrepreneur. तो इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं और फिर फाइनली एक ऑल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच सेज रैशनेल ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमने रोल तो पढ़ लिया, पर मतलब ठीक है, डिसीजन मेकिंग ये सब काम करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हम जब डिसीजन ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि बस हमारे पास ये 4 सप्लायर्स के नाम है, इन चारों को हमने इवैल्यूएट किया और डिसीजन ले लिया। डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द स्टेप, बट वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि आगे आने वाले टाइम में हमें लॉन्ग टर्म में कौन सा सप्लायर बेनिफिशियल होगा, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, डिलीवरी वाइज, टाइम, कन्वीनियंस, एफर्ट, हर तरीके से हम उस डिसीजन मेकिंग के लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं। देन वी गैदर इंफॉर्मेशन, वी आइडेंटिफाई ऑल दी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 सप्लायर्स हैं, तो चारों में से मुझे किससे रॉ मटेरियल खरीदना है, इसका डिसीजन कैसे लूंगी मैं? इसका डिसीजन आई विल फाइनली evaluate all the alternatives that are available to me. Okay, next, weigh the evidence. आपने के पास alternatives आए, आपने उन्हें evaluate किया, उसके बाद आप ये check करोगे कि किसमें कितना potential है future course of action तक जाने का। Okay, then we have to choose amongst the alternatives, take your action and review your decision. हमने एक्शन ले लिया, अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर लिया। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डजंट स्टॉप हियर, यू हैव टू इवैल्यूएट योर डिसीजन फॉर द फ्यूचर कि जो मैंने इस साल के लिए डिसीजन लिया, क्या मेरे को उसको रिवर्ट करने की जरूरत है या वो ऐसे ही चलेगा तो इट वुड बी फ्रूटफुल टू मी। जो मैंने डिसीजन लिया क्या वो वायबल था, फिजिबल था एनवायरनमेंट को देखते हुए?
कहीं पे क्या मेरे गैप्स हैं, क्या मेरे स्ट्रेंथ हैं, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, मीनवाइल और कौन सी अपॉर्चुनिटीज आई दैट आई कुड हैव टैप्ड व्हिच आई डिडंट. ओके, सो व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, यू आर रिव्यूइंग योर डिसीजन. आप फॉलो अप ले रहे हो. जैसे हम गए, हम कहीं पे जा रहे हैं तो हमने गूगल मैप ऑन किया कि चलो देख लेते हैं कौन सा रूट सबसे छोटा पड़ेगा. हम ये करते हैं ना. उसके बाद सपोज आई टुक वन ऑफ द रूट वेयर एज द अदर रूट लंबा था पर जैम नहीं था. तो वी मतलब वी पर्टिकुलरली इवेल्युएट दिस कि नेक्स्ट टाइम से हम ट्रैफिक से बचना चाहेंगे या हम मतलब लंबे रास्ते से भी जाने को तैयार हैं. तो यहाँ पर हम अपने डिसीजन को रिव्यू कर रहे हैं कि suppose I took this decision of selecting a particular supplier, running my machinery 24/7, buying more and more products, hiring new labor. जो भी मैं अपने थ्रू आउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस ले रही हूँ, उनकी वायबिलिटी, उनकी whether they prove to be fruitful to me or not. Okay. This is very, very important. In fact, this is the most important part in your decision making chapter, that is techniques of decision making. अब अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है, देखिए मैं आंसर लिख रही हूँ इसमें. टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में आंसर आपको कैसे लिखना है. फर्स्ट डिफाइन, सेकंड फीचर्स, थर्ड, ये जो मैंने अभी डायग्राम आपको दिखाया है ना, आपको ये डायग्राम बनाना है. फोर्थ, एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स दैट आर देयर इन द डायग्राम एंड इन द एंड राइट कंक्लूजन. तो ये आपका एक फुल फ्लेजेड 7 से 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन जाता है. आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल इन हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो अब हम इसको एक सेकेंड में आपके क्वेश्चंस पढ़ लो. कुछ क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की. ओके, नेक्स्ट, टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग में हमारी दो तरह की टेक्निक्स आती हैं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स. मॉडर्न टेक्निक्स में वी हैव टू फर्दर टेक्निक्स, हेरिस्टिक एंड पार्टिसिपेटिव. वेराज अगर मैं ट्रेडिशनल टेक्निक की बात करती हूँ तो डिपेंड करता है कि मेरी जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रोग्राम्ड डिसीजंस हैं या नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस है. अगर तो प्रोग्राम्ड डिसीजंस है तो मेरे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, एक स्ट्रक्चर है. अदरवाइज नॉन प्रोग्राम्ड के केस में दीज आर दी टेक्निक्स: लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी थियोरी, गेम थियोरी, then queuing theory and network techniques. I hope I am clear. Now let me explain this one by one. Let's talk about traditional techniques first. ट्रेडिशनल टेक्निक्स में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स में वी हैव प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस. लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्राम डिसीजन फर्स्ट. प्रोग्राम डिसीजंस क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड रूल्स. यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, हम एक रूटीन को, रेपिटेटिव डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं. सो व्हेन एवर नीडेड, मैनेजर क्या कर रहा है, जब भी उसको कोई डिसीजन लेने का जरूरत पड़ रहा है तो जो वो ऑलरेडी फॉलोड प्रोसीजर्स और रूल है वो उन्हीं को ही यूज कर रहा है. ओके, रूटीन डिसीजंस डू नॉट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल स्किल या नॉलेज. मतलब मुझे कोई भी मुझे पता है कि मुझे बहुत अर्जेंटली आई हैव टू बाय यू हैव टू डिफाइन डिसीजन मेकिंग. टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन थोड़ी ना है, डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन है और उसके बाद आप हर टेक्निक को एक्सप्लेन करोगे. आई होप आई एम क्लियर टू यू हेमलता. नेक्स्ट इज, जब हम एक सेट स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि इन केस मुझे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने एक रूल्स को डिफाइन किया हुआ है कि मुझे
यही रूल्स को फॉलो करना है, यही प्रोसीजर को, यही पॉलिसीज को फॉलो करना है. अदर वन इज योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर where a relationship is established between a superior and subordinate. अब ये रिलेशनशिप क्या है? हायरार्की है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप. हायरार्की कैसे? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट. अब अगर चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी है तो ऊपर से ऑर्डर शुरू होगा, और कम्युनिकेशन है तो वो ऊपर से भी हो सकती है, बॉटम टू टॉप भी हो सकती है, और आपकी साइडवेज भी हो सकती है. ओके, देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आई होप आई एम क्लियर कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज योर नॉन प्रोग्राम डिसीजन. नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जो होती हैं वो स्ट्रैटेजिक इन नेचर होती हैं. दे रिक्वायर सर्टेन एनालिसिस, दे रिक्वायर सर्टेन इंटरप्रिटेशंस. जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है या कोई यूनिक प्रॉब्लम आती है तो यू नीड एन एक्सपर्टीज, यू नीड स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी एंड जजमेंट. Okay, you need scientific techniques in order to take your decisions. इसमें से आपकी फर्स्ट टेक्निक आती है लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग आप कब यूज करते हो? आई थिंक आपने ये अपने स्कूल में किया है या नहीं, आई डोंट नो, बट आप कॉलेज में जरूर ये चैप्टर करोगे. बिजनेस मैथ्स करके है सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में. आई डोंट नो बीकॉम में है कि नहीं है. तो बिजनेस मैथ्स में एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग. अगर आपको याद हो, हम ग्राफ प्लॉट करते थे कि आपके पास इतनी मशीनरी है जो इतने घंटे चल रही है. सपोज 2 मशीनरीज हैं, 2 घंटे चल रही हैं, और वो 3 टेबल 4 कुर्सी बना रही है ना? तो कौन सी मशीनरी का बेटर प्रोडक्शन है? इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम अजम्पशन बेस उनकी एक लीनियर रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में बना रहे हैं. तो ये टेक्निक वहां पे फ्रूटफुल होती है जो कि क्वांटिफाइबल होती है, जो कि मेजरेबल होती है. जैसे आपके प्रॉब्लम एरियाज हैं प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, या आपकी ओवरऑल आपको मिनिमम कॉस्ट करनी है. ओके, जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन ही आपको बता देती हूँ. जैसे देयर आर 3 मशीनरीज A, B, C. They are producing, they are working for say 2, 3, 4 hours respectively, and they are producing 3 tables, 6 tables and 7 tables respectively. Fine. So what would be the अगर आप कौन सी मशीन मैक्सिमम रन करो जिससे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो? तो इसमें 2 ऑपरेशंस होते हैं, मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज कॉस्ट. तो यहाँ पे हम LP टेक्निक का यूज करते हैं जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर प्रोबेबिलिटी थ्योरी. प्रोबेबिलिटी चैप्टर किया था ना आपने अपना 11th-12th में. तो ये भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि अज्यूम करता है कि प्रोबेबिलिटी निकालता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, एक्ट करोगे, अपने रिजल्ट्स को कैसे मॉडिफाई करोगे, आप क्या डिसीजन लोगे. सो इन दिस टेक्निक देयर इज दिस पे ऑफ मैट्रिसेस और डिसीजन ट्री इज कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट द वेरिएबल. आपने क्या किया, आपने एक मैट्रिक्स बना लिया कि ये सिचुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये अजम्पशंस होंगी. ओके, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी. नेक्स्ट इज योर गेम थ्योरी. गेम थ्योरी क्या होती है? गेम थ्योरी जनरली हम कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में यूज करते हैं. तो इट वाज बेसिकली डेवलप्ड टू फॉर यूज इन वॉर so that actions of army can be decided in the light of actions. I mean game word जो है ना, ये basically represent करता है 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज के बीच में conflict को. तो the game is always prescribed by set of rules. इस गेम को जो खेल रहे हैं वो कौन है? वो प्लेयर्स हैं. वो एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में इस गेम को प्ले कर रहे हैं. And all the players act intelligently and rationally, and they are well informed about the decision situation except the opponent's action. So for each player, the outcome may represent a gain or a loss or a draw. Okay. Next is your queuing theory, जिसको हम waiting line theory भी कहते हैं. Queue मतलब एक लाइन फॉर्म करना. तो ये हम तब अप्लाई करते हैं when we need to maintain a balance between cost of waiting line and cost of preventing the waiting line. मतलब एक तो है आपकी क्यू में वेट करने की क्या कॉस्ट पड़ रही है,
और एक कॉस्ट है कि मुझे क्यू में ना खड़ा होना पड़े, इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी. Utilizing your personnel, equipment, your resources so effectively that there is least amount of wastage in terms of time. Okay? आपको ये कहीं ना कहीं तो एक बैलेंस को स्ट्राइक करना पड़ेगा ना कि आपने एक बार तो एक हफ्ते तो मशीनरी चला दी 24 घंटे 7 दिन, और दूसरे हफ्ते आपने फैक्ट्री बंद कर दी क्योंकि आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई. तो क्या होगा, एक हफ्ते तो आपने अपने वर्कर्स को ओवर टाइम दिया और दूसरे हफ्ते आप उनको फ्री में सैलरी दे रहे हो. ऐसे नहीं करना ना. यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन देम. कि यही आप क्या निकाल रहे हो, इसी तरीके से आप ये निकालने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा आप क्या बैलेंस लें, दैट यू हैव टू अवॉइड योर वेटिंग टाइम. Somebody has messaged that the screen is not visible. Is it visible? Is it visible to everybody? Okay. Should I share it again? I hope it's visible now. Next part is नेटवर्क टेक्निक्स. अभी तक हमने 4 टेक्निक्स की बात की हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, गेम थ्योरी और क्यूइंग थ्योरी की. अब हम बात करते हैं नेटवर्क टेक्निक्स की. नेटवर्क टेक्निक अगर आप यहाँ पर तो मैं बहुत डिटेल में नहीं करवा रही, लेकिन जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें इन दो नेटवर्क में ना 2 तरह की टेक्निक्स आती है, पर्ट और सीपीएम. तो ये दोनों टेक्निक्स डायग्राम के साथ बुक में ना डिटेल्ड में मेंशन है. Okay, so refer the book for that. Network technique जो होती है, it is used to for preparing and controlling the project activities. PERT इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और CPM हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड को. They are used for planning, monitoring and implementing time bound projects. जो भी आपके time bound projects हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको प्लान करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं. तो दे आर बेसिकली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में जहां पर एक एक टाइम मतलब एक एक मिनट और कॉस्ट बहुत इफेक्टिव है, वी यूज दिस टेक्निक्स. ओके, देन कम योर मॉडर्न टेक्निक्स. अभी तक हमने ट्रेडिशनल टेक्निक्स पढ़ी थी. ट्रेडिशनल टेक्निक्स में आई टोल्ड यू that there are 2 types of techniques, that is programmed decision and non-programmed decisions. Programmed decisions में I told you कि again there are 2 types, standard rules and organization structure, and within non-programmed we have linear programming. Then we have linear programming के बाद क्या था हमारा, I think probability theory, game theory, queuing theory and network technique. Within network technique we have PERT and CPM. Okay, I hope I am clear to you all. Fine. Next, the modern techniques of decision making. अब अगर हम ये बात करें तो ये हमारी ना ट्रेडिशनल टेक्निक है, लेकिन अब because we are dealing with the environment which is constantly changing, we are dealing with consumer whose behavior is unpredictable. We are dealing with changing and challenging business environment, people. So it requires special attention for decision making process. Okay, अब इसमें हमारी 2 टेक्निक्स आती हैं. सबसे पहली हमारी टेक्निक है हेरिस्टिक टेक्निक. हेरिस्टिक टेक्निक जो है वो मेनली आपकी अजम्पशन बेस्ड है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, चेंजिंग सिचुएशंस हैं, स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स हैं. सो वी नीड टू अप्लाई सम साइंटिफिक टेक्निक. हमें रैशनल टेक्निक्स को एम्प्लॉय करने की जरूरत है, सो दैट इन conflicting interest could be avoided, uncertain environment could be understood. So by splitting the problem into smaller parts and then analyzing each part, a decision can be reached. So basically it's on rule of thumb. हमने क्या किया, हेरिस्टिक का क्या मतलब होता है?
बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिस्टिक? टेल मी द मीनिंग ऑफ हेरिस्टिक. मैं आपको हेरिस्टिक बता रही हूँ. हेरिस्टिक क्या होता है? हेरिस्टिक का मतलब होता है योर एबिलिटी टू लर्न. मतलब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं. जैसे अभी मैं आपको सिर्फ पढ़ा रही हूँ, मतलब मैंने स्क्रीन दिखाई और मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया. लेकिन जब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ पढ़ते हो तो आप बेटर अंडरस्टूड करते हो. तो हेरिस्टिक टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. अब स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने से हमें क्या फायदा हुआ? हमें ये फायदा हुआ कि हम हर पार्ट को सेपरेटली स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड सेपरेट डिसीजंस लेंगे. So those decisions would be more effective, efficient, and much better in its execution. Okay. फिर आता है आपका पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग. अब पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग तो बेसिकली हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं. डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. तो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग में भी वी आर इनवाइटिंग एम्प्लॉइज एट ऑल द लेवल्स. जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कर रही है, जब भी कोई स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है तो इट इनवाइट्स पीपल, इट इनवाइट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, फ्रॉम वेरियस लेवल्स. आपने ट्रेड यूनियन में से ले लिया, आपने मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, इन सब में से आपने एम्प्लॉइज को बुलाया एंड यू हायर, आई मीन you call them, you sit with them, you pose them with particular problem, then they all undertake this brainstorming session. प्रॉपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हो, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, समझते हो, और क्योंकि सारी पार्टीज वहीं पर इन्वॉल्व हैं तो अ बैलेंस डिसीजन इज टेकन सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ नो सिंगल पार्टी इज अवॉइडेड, so that the interest of no single party is being missed. ठीक है, मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की कुर्सी पर बैठी हूं पर मुझे नहीं पता कि फैक्ट्री में मेरे वर्कर्स क्या फेस कर रहे हैं. वो कौन बताएगा? वो मुझे बताएगी ट्रेड यूनियन. मैंने तो रूल बना दिया कि 24 घंटे सातों दिन काम करना है, पर 24 घंटे सातों दिन काम करने के लिए आई मीन जस्ट अ मिनट, मैं एक बार स्लाइड शो कर, क्या मैं इतना मैंने अपने वर्कर्स को क्या वो कंडीशंस दी हुई हैं, साउंड और हार्मोनियस वर्किंग कंडीशंस हैं? तो वो मुझे कौन बताएगा? वो मुझे ट्रेड यूनियन बताएगा. मार्केटिंग मैंने बोल दिया कि इतना एक्सपेंडिचर करना है आपको मार्केटिंग में, पर क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे पता है? वो कौन बताएगा? वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट मुझे बताएगा. ठीक है, तो हम जब डिसीजन लेते हैं तो वी मेक श्योर कि we are calling people from different zones, different departments in order to, in order to uh, get a balanced and effective decision. Now, somebody has asked me about the book in Hindi. Honestly speaking, I really don't know which book to refer. I'll try to connect to people who can let me know about which book to refer in Hindi medium. बाकी आप जैसे रिटेलर के पास जाएंगे, शॉपकीपर के पास जाएंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि कौन सी बुक आप रेफर कर सकते हो हिंदी में. ओके, नेक्स्ट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग. नाउ स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग की जब हम बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट हर लीडर का ना एक अपना स्टाइल होता है डिसीजन लेने का. फाइन, एनालिटिकल है, कंसेप्चुअल है, डायरेक्टिव है या बिहेवियरल है. एनालिटिकल में क्या करते हैं, वी आर कमिटेड टू फाइंड द बेस्ट आंसर, मोर इनोवेशन इज देयर, बेस्ट ऑप्शन को हम चैलेंजेस को स्क्रूटनी करते हैं, वी एंजॉय वेराइटी एंड वी टेंड टू मेक द बेस्ट डिसीजन. कंसेप्चुअल में हम बेसिकली अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, हम कंफर्टेबल होते हैं व्हाट इफ, अगर ऐसा हो गया तो हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हमें ये अचीव करना है, तो वो पर्टिकुलर थिंग को अचीव करने के लिए व्हाट ऑल स्टेप्स आई हैव टू अंडरटेक.
Directive is again driven by results. It is more aggressive in nature. It is more intuitive in nature. It informs people once a decision is made. तभी तो हम लोगों को directions दे रहे हैं ना कि ये decision हमने लिया है to achieve this target. Behavioral style is very interesting style. Reason being it is empathetic in nature. It's persuasive in nature. It's good communicator. We are trying to understand the behavior of the people around us, and accordingly we are molding our decision in such a way because we are empathetic towards them. Okay, हम उनके माइंड को रीड कर रहे हैं, हम उन्हें परसुएड कर रहे हैं. वी आर गुड कम्युनिकेटर. नाउ प्रॉब्लम्स इन डिसीजन मेकिंग यही है कि जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके पास होते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, तो ऑब्वियसली देर आर चांसेस दैट द इंफॉर्मेशन इज ओवरलोडेड और यू टेंड टू एंड अप विद मेकिंग नो डिसीजन और मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन. या फिर कई बार क्या होता है, नॉट हैविंग इनफ इंफॉर्मेशन. कई बार तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है और कई बार आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, या है तो बहुत कम है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे. देन कम्स योर मिस आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. समवेयर व्हेन द प्रॉब्लम इज नॉट आइडेंटिफाइड प्रॉपरली, when the problem is not identified properly, then you tend to make a wrong decision. Sometimes there is overconfidence, sometimes there is impulsiveness. कई बार बहुत सारी opinions और बहुत सारी objectivity होती है जिस वजह से भी आप एक अच्छा decision नहीं ले पा रहे हो. तो decision लेने का मतलब ये नहीं है कि डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो ऑल्टरनेटिव्स थे आपने वो सेलेक्ट करके एंड डन. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट विद अ बैलेंस माइंड, विद अ साउंड माइंड. आपको शांति में पहले उन सब ऑप्शंस को समझना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके, इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करके, देन यू हैव टू टेक द डिसीजन. ओके. And the last part is your principles of decision making. Principles of decision making का मतलब होता है कि जब आप कोई decision ले रहे हो, तो what all factors you should keep in mind while making the decision. अब वो कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो पर्पस ड्रिवन होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, एजुकेशनल, वॉलंटरी, इट मस्ट बी सेल्फ डिजाइन. वेर एवर यू रिक्वायर आप एक्सपर्टीज या स्किल्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. इट शुड बी फ्लेक्सिबल. इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीबॉडी, रिस्पेक्टफुल, अकाउंटेबल, टाइम लिमिटेड एंड अचीवेबल. मतलब मैंने डिसीजन तो ले लिया कि मैं आपसे डिसीजन जब भी मैं लेती हूँ, इट हैज टू बी टाइम बाउंड. I have to frame it within a limited time. I have to direct it to my employees. I have to consider all the factors while making a sound decision. कौन सी parties इसमें involved है, internal environment, external environment, या जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो क्या इस decision से खुश हैं, क्योंकि ultimately it is the lower level management who will be working on the decision. Okay. So I hope I am clear with this chapter. I am sharing the PPT of this chapter on WhatsApp group. एक बार ये आप check कर लीजिए whether it is visible to you people or not. Chapter 10. एक मिनट रुकिए. Give me a second.
I hope you have got the PPT. Those who are not there in the group, I am writing my number in the chat box. Please send a hi to me on the WhatsApp group. Okay, send me hi in my personal window and I will invite you via link. And once again, I will share all the 10 PPTs with you people so that you can go through those 10 PPTs. And tomorrow I will be doing another chapter, that is organizing with you. And once we are done with organizing, so we will be done with the first 3 units. So it's my request, already 10 classes हो चुकी हैं हमारी, total 15 classes हैं, 5 classes are left, which we will be able to cover up by the next week. हम पूरा syllabus कर लेंगे अपना. तो it's my humble request to everybody कि आप एक बार प्लीज उन PPTs को go through कर लीजिए, बुक परचेज कर लीजिए. कोई भी क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं विद इन क्लासेस आपकी वो क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं. Am I clear to everybody? Any problem? किसी को कुछ पूछना है चैप्टर से रिलेटेड या और कुछ? Akash, I have sent my number. Please send a hi to me on WhatsApp and I'll send you an invite link. Okay, so with this we are done with the 10th chapter as well, and now we have a class on Tuesday, right? I'll try to have your class on Monday as well. आपका एक class अभी बचा हुआ था last का, तो I'll see कि हम Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. अच्छा कल भी तो क्लास है, कल सैटरडे है ना हमारा, हाँ कल भी तो क्लास है. So we'll meet tomorrow and I'll discuss the next chapter tomorrow. Okay, organizing chapter. So you all can leave now. Thank you.